हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बताया जाएगा कैसे इसके क्वेश्चंस को और हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फंक्शन fx equal to 1 when magnitude of x is less or equal to 1, and it will be 0 when magnitude of x is greater than 1, as a Fourier integral and hence evaluate integration 0 to infinity sine of lambda cos of lambda x upon lambda d lambda. So ये आपका क्वेश्चन है जिसका फूरियर इंटीग्रल के बेसिस पे इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो इसके सॉल्यूशन पर हम आते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंस फूरियर इंटीग्रल of any function is given by fx equal to 1 upon pi 0 to infinity minus infinity to infinity ft cos of u t minus x du dt। इस डबल इंटीग्रेशन से आप फूरियर इंटीग्रल को आप इसको देते हैं, तो इस फार्मूले के बेसिस पर हमको इस गिवन फंक्शन की वैल्यू को इवेलुएट करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ x is defined as x when x is greater or equal to 0, and this be minus x when x is less than 0। मैग्नीट्यूड ऑफ x को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहां एक्चुअली जो इस फंक्शन की लिमिट दी हुई है, जो फंक्शन ये डिफाइंड है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ x के पॉइंट से डिफाइंड है। तो यहां देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू, यानी डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लाइज बिटवीन -1 to 1, because if this is -1 and this 1, in this direction this will be minus infinity, in this direction will be the positive infinity, and the function is defined as magnitude of x is less or equal to 1. It means that the x lies between this to this point, -1 to 1, is defined by this function, and otherwise case it will be defined in this case. So 1 to infinity is 0, and -1 to minus infinity it will be 0. So this can be written as 1 upon pi 0 to infinity and minus infinity to -1 ft cos of ut minus x du dt plus -1 to 1 ft cos of
ut minus x du dt plus 1 to infinity ft cos of ut minus x du dt। इस तीन इंटीग्रेशन में आपका ये फंक्शन ब्रेक हुआ, और जब ये तीन इंटीग्रेशन में ब्रेक हुआ तो यहां पर ध्यान दें कि इस पिक्चर से ये क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, यानी दिस भी लाइज बिटवीन -1 to 1 is defined by this way. So this can be written as fx equal to 1 upon pi 0 to infinity, first integration value is 0, ft is 0, so it will be 0 plus -1 to 1 cos of u t minus x du dt and plus 0. So this be equal to 1 upon pi 0 to infinity -1 to 1 cos of ut minus x dt du। आपका ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल है और कांस्टेंट वैल्यू है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस भी इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to infinity, integrate this one with respect to t, तो integration of cos is sin ut minus x upon u, and limit of the integration is -1 to 1. When we substitute this limit 1 upon pi 0 to infinity sin of u 1 minus x upon u minus of sin of u minus 1 minus x upon u. So this will be equal to 1 upon pi 0 to infinity sin of u 1 minus x by u minus sin of minus of u 1 plus x upon u, and this be du and du. So sine minus theta is equal to minus sine theta. So its second term will be fx equal to 1 upon pi 0 to infinity sine of u 1 minus x upon u plus sine of u 1 plus x upon u. So this can be written as 1 upon pi integration 0 to infinity sine of u 1 minus x plus sine of u 1 plus x upon u du. So this be equal to 1 upon pi 0 to infinity sin c plus sin d. तो sin c plus sin d is equal to 2 times sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो जब इस पर आप इसको रखेंगे तो sin u minus ux plus u plus ux upon 2 into cos of
u minus ux minus of u minus of ux upon 2 whole upon u du. So this will be equal to 1 upon pi 0 to infinity 2 times sine of, this will be cancelled out, sine 2u by 2, that is u, and this will be cancelled out, cos minus of ux upon u du. So this will be equal to 2 upon pi 0 to infinity sine of u cos of ux, cos minus theta is cos theta. So this implies that 0 to infinity sine of u cos of ux upon u du, this will be equal to pi by 2 fx, pi by 2 fx. This will be equal to, value of fx is 1 when magnitude of x is less or equal to 1, and it will be 0 when magnitude of x is greater than 1. So this implies that integration 0 to infinity sine of u cos of ux upon u du, this be equal to pi by 2 when magnitude of x is less or equal to 1, and this be 0 magnitude of x is greater than 1. Now substituting u equal to x, u equal to lambda in above equation, we have 0 to infinity sine of lambda cos of lambda x upon lambda d lambda, this be pi by 2 when magnitude of x is less or equal to 1, and this be 0 when magnitude of x is greater than 1. So इसकी वैल्यू जो इवेल्युएट करना था वो आपने यहाँ पर इसको इवेल्युएट कर लिया, इसी की वैल्यू को निकालना था साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा डी लेमडा, और वो आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि फूरियर इंटीग्रल के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। इसके कई सारे क्वेश्चन इसमें आपको पिछले वीडियो में ही बताए जा चुके हैं, इसमें भी आपको ये चीज बताई जा चुकी है। सो कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको एक चीज ये कह देता है, ये चीज जब आपने ये प्रूफ कर लिया तो कभी आपको इवेल्युएट करने के लिए आपको दे देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन यू d lambda, find the value of this equation, find the value of this equation। ये चीज कब इसमें इसकी वैल्यू को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ये वैल्यू कब आपका आएगा, तो इसी इक्वेशन में जो आपका ये इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन में यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें x इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1, तो व्हाट हैपेंस when we substitute x equal to x equal to 1 in equation 1, we have 0 to infinity sin lambda cos lambda upon lambda d lambda, this be equal to
pi by 2 0. This implies that 1 upon 2 0 to infinity sine of 2 lambda upon lambda d lambda. ग्रेटर देन 1. इस तरीके से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कभी कभी इन चीजों को हम ऑब्टेन करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसी फूरियर इंटीग्रल के बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स फूरियर इंटीग्रल, और वहीं से स्टार्ट किया जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो अब आपको हम वहां ले चलते हैं कि फूरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल क्या होता है. फूरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल. फूरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल क्या है ये हम आपको बताते हैं. तो fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e to power I ux du and minus infinity to infinity e to power I ut ft dt. This is the definition of complex Fourier integral. कॉम्प्लेक्स फूरियर इंटीग्रल. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज हम ध्यान दें कि कुछ बुकों में इनवर्स एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते समय इस 1 अपॉन 2 पाई को दो तरीकों से यूज किया गया है. वो कैसे? वो इस तरीके से कि इस fx को इन दोनों इंटीग्रेशन के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस आई यू एक्स डी यू एंड 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू पावर आई यू टी एफ टी डी टी. This be equation number 1. Let 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity IUT FT dt. इसको यदि ध्यान दें तो आपका ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है. तो जब ये इंटीग्रेशन जो भी ft फंक्शन होगा उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका जो फंक्शन मिलेगा वो u और t का कॉम्बिनेशन मिलेगा. बट आपका जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट इंटीग्रल है. तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट ऑफ t, तो इन दैट केस द होल फंक्शन will be converted into only one variable, that is u. So let this be a function of u. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आई यू एक्स du into fu. So this can be written as 1 upon 2 pi minus infinity to infinity iux fu du. ये आपका fx है. This be equation number 3. अब हम यहां ध्यान दें इस इक्वेशन 1 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3. इस ब्रेक में हमने बस एक चीज को रखा है कि जब इस इंटीग्रेशन में आपने देखा कि इट इज जब इसको इंटीग्रेट किया तो केवल हमको u मिलेगा क्योंकि t आपके डेफिनेट इंटीग्रल के कारण उसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, केवल u बचेगा.
ठीक उसी को जब हमने यहाँ रखा तो इस इंटीग्रेशन में ध्यान दें कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो u के रिस्पेक्ट में होगा, तो फंक्शन u और x के टर्म में बचेगा। और व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन प्लेस ऑफ u, देन ये कंप्लीट फंक्शन जो बचेगा वो केवल x का बचेगा। यानी इन दो के ट्रांसफॉर्मेशन को, इसमें से इस पहले ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म। और जो आपका ये दूसरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब कई जगहों पर हुआ क्या है, कुछ बुकों में करते क्या है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को केवल इतना डिफाइन किया जाता है, 1/√2π यहां छोड़ दिया जाता है, और जब इनवर्स के रूप में जाते हैं तो वहां पर ये 1/√2π से प्रोडक्ट ना करके 1/π से वो प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो 1 ये जो आपका 2π है दैट इज कांस्टेंट। अब या तो वो इनवर्स के साथ डायरेक्टली 1/2π कर दें, या उसको दो पार्ट में, आधा जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म में रख लें और फिर उसके आधे पार्ट को इनवर्स में रख लें। दोनों ही तरीकों से उसको सॉल्व किया जा सकता है। जो भी डिफरेंस आएगा वो केवल इस कांस्टेंट की वैल्यू के कारण आएगा। तो वो आप यदि यहां रखेंगे तो वहां वो अपीयर करेगा, यदि यहां नहीं रखेंगे तो ये वाली टर्म यहां इस कांस्टेंट की वैल्यू इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड फिर वो जब इन्वर्स करेंगे तो वही चीज आपकी अपीयर हो जाएगी। तो ये फूरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ही दो पार्ट में ब्रेक हुआ, जिसमें एक पार्ट को हम कहते हैं, उस डबल इंटीग्रेशन के एक पार्ट को कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरे को कहते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब ठीक वैसे ही जैसे आपका फूरियर इंटीग्रल में आपको बताया गया था साइन इंटीग्रल एंड कोसाइन इंटीग्रल, साइन इंटीग्रल एंड फूरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी आपको ट्रांसफॉर्म पढ़ना होगा, जिसमें इसको नाम दिया गया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स तो सिंस फूरियर साइन इंटीग्रल is given by Fourier sine integral is given by fx is equal to 2/π 0 to infinity sine of ux du 0 to infinity ft sine of ut dt। इसी में इस कांस्टेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 2/π 0 to infinity sine of ux du into 2/π 0 to infinity ft sine of ut dt। इसमें दिस भी इक्वेशन नंबर 1। अब उस इक्वेशन 1 में √2/π 0 to infinity ft sine of ut dt को हम fu ले लें s, क्योंकि हम यहां साइन ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहे हैं, साइन इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं, तो s कर दें। तो आपका ये हो गया दिस भी इक्वेशन नंबर 2। और जब हम उसका वहां यूज कर लेंगे तो fx इज इक्वल टू 2/π 0 to infinity sine of ux du f of su।
This S represent for sine. So this be equal to 2 upon pi 0 to infinity sine of ux f of su du. This be equation number 3. Equation 2 is known as Fourier sine transform, and this will be known as inverse Fourier sine transform. ठीक वैसे ही जैसे आपका फूरियर कॉम्प्लेक्स फूरियर इंटीग्रल से दो अलग अलग पार्ट को ब्रेक कर दिया गया था, एक को फूरियर ट्रांसफॉर्म कहा गया था और दूसरे को इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहा गया था। ठीक इसी तरीके से आपका यहाँ पर ये साइन का है कि उस साइन इंटीग्रल से जो आपने लिखा है उसी के आधे पार्ट को जिसमें हमको u के टर्म में फंक्शन मिल रहा है उसको हम कहेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और दूसरे वाले को जिससे कि हमको x मिल रहा है fx मिल रहा है फंक्शन, उसको हम कहेंगे इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली जब हम फूरियर कोसाइन के केस में जाएंगे, फूरियर कोसाइन तो सेम एज जो डिफिनीशन था फूरियर कोसाइन, तो सिंस फूरियर कोसाइन integral is given by fx is equal to 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du 0 to infinity ft cos of ut dt cos of ut dt। फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 2 upon pi 0 to infinity cos of ux du 2 upon pi integration 0 to infinity ft cos of ut dt, दिस भी fx। इसी चीज को जो इक्वेशन 1 ये बन रहा है आपका यहाँ पर, इसी को दो पार्ट में ब्रेक करना है। आप जिस फंक्शन से जिस पार्ट से आपको केवल u का फंक्शन मिल रहा है वो आपका हो जाएगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज लेट अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी ft cos of ut dt, this be equal to fu c। This c represent for cosine transform, cosine। So this be equation number 2, and using 2 in 1 fx is equal to 2 upon pi 0 to infinity cos of ux fc of u du, this be equation number 3। This equation 2 is known as Fourier cosine transform, and equation 3 is inverse Fourier cosine transform। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें ये बता दी गई कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म,
एंड इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।